Let us discuss resonance or mesomeric effect. This is one of the electron displacement effects in covalent bonds. Before discussing resonance or mesomeric effect, let us throw some light on concept of resonance. Resonance is a phenomenon of assigning two or more than two structures to an organic compound. None of the structures is capable of explaining all the properties of that compound. The actual structure lies between these structures. That is known as a resonance hybrid structure. Hybrid structure. A resonance hybrid structure or canonical structure or these resonance hybrid structure, and the structures assigned to the molecule, to the organic compound, are known as canonical structures or contributing structures. Canonical structures, the various structures assigned to the organic molecule are known as resonating structures or canonical structures or contributing structures. Contributing structures. All these structures, these are hypothetical and individually do not represent any real molecule. The energy of the actual structure of the molecule, that means resonance hybrid structure, is lower than any of the canonical structure. यानी जो एनर्जी होती है एक्चुअल स्ट्रक्चर की, जिसको हम मानते हैं रेजोनेंस हाइब्रिड स्ट्रक्चर, उसकी एनर्जी जो होती है दैट इज लोअर देन द एनर्जी ऑफ द एनी कैनोनिकल स्ट्रक्चर, एनी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर. द डिफरेंस इन एनर्जी, the difference in energy between actual structure and the lowest energy resonating structure. And the difference in energy, there is energy difference between the actual structure and the lowest energy resonating structure, that is known as resonance stabilization energy or simply resonance energy. फर्स्ट बार अगर हम यहाँ पर हम एग्जांपल ले लेंगे बेंजीन का. बेंजीन को हम कर सकते हैं टू कैनोनिकल स्ट्रक्चर साइन लाइक दिस. दिस इज बेंजीन. इट हैज alternate single and double bonds. This is structure 1. Canonical structure, this is structure 2. 1, 2, 3, 4, 5, 6. This is structure 2. Here the double bond, here the single bond between 1 and 2, here 1 and 2 together may have a double bond. So these are two canonical structures assigned to the benzene ring. None of the structure is actual structure. इनमें से कोई इसकी actual structure नहीं है. और none of the structure is capable of explaining all the known properties of benzene. इनमें से कोई स्ट्रक्चर एक्सप्लेन नहीं कर सकती ऑल द प्रॉपर्टीज ऑफ बेंजीन. सो द एक्चुअल स्ट्रक्चर इज समवेयर इन बिटवीन दीज टू स्ट्रक्चर्स. दैट इज नोन एज resonance hybrid structure. That cannot be drawn on this paper or board. So sometimes we can show that structure like this. इसको हम ऐसे दिखा सकते हैं कभी like this. This is the resonance hybrid structure. But that cannot be. One must take clear this thing. It should be clear that we cannot draw that resonance hybrid structure on the plane of paper or plane of board. So rules, अगर हम कभी resonance structure हमें डालने हैं, canonical structure हमें डालने हैं, कैसे डालेंगे उसके लिए कुछ rules follow करने हैं. The first rule is that all the resonating structures have same position of nuclei. उनका same position of nuclei होना चाहिए, nuclei होना चाहिए.
and they must contain the same number of unpaired electrons. हर एक में होना चाहिए same number of unpaired electrons. एक और बात है, जिस रेजोनेंस स्ट्रक्चर में ज्यादा नंबर होगा कोवेलेंट बॉन्ड्स का और हर एक एटम का होगा ऑक्टेट, यानी इलेक्ट्रॉन ऑक्टेट होगा हर एक एटम का, और लेस सेपरेशन ऑफ चार्ज होगी, लेस सेपरेशन ऑफ अपोजिट चार्जेस होगा, लेस सेपरेशन ऑफ अपोजिट चार्जेस, दैट मीन्स उसका ये मतलब है अगर वहां पर कोई चार्ज होगा नेगेटिव चार्ज दैट is on electronegative atom, more electronegative atom, and a positive charge if any that is on more electropositive atom. और एक बात, more dispersed of charge, ज्यादा वहां पर dispersed charge होती है, that resonance structure is considered as the most stable structure. उसको हम मानते हैं ये most stable structure है अगर उसमें ये चीजें होंगी। एक तो उसमें होना चाहिए ज्यादा नंबर ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड्स, दूसरा होना चाहिए ऑल द एटम्स शुड हैव इलेक्ट्रॉन ऑक्टेट, और वहां पर होनी चाहिए लेस सेपरेशन ऑफ चार्ज, लेस सेपरेशन ऑफ चार्ज, और वहां पर होनी चाहिए मोर डिस्पर्स्ड ऑफ चार्ज। उसको हम मानते हैं ये सबसे ज्यादा स्टेबल स्ट्रक्चर है। सो दिस वाज अबाउट रेजोनेंस। नाउ वी विल टेक रेजोनेंस और मेसोमेरिक इफेक्ट। व्हाट इज एक्चुअली रेजोनेंस इफेक्ट? रेजोनेंस इफेक्ट इज एक्चुअली is defined as the polarity. It is defined as the polarity produced in the molecule. In a resonance or mesomeric effect is defined as the polarity produced in the molecule, organic molecule, by the interaction of two pi bonds or between a pi bond and a lone pair of electrons present on an adjacent atom. The effect is transmitted through the chain. There are two types of resonance effects. दो किस्म की रेजोनेंस इफेक्ट्स है। एक है जिसको हम पढ़ते हैं पॉजिटिव रेजोनेंस इफेक्ट, रेजोनेंस इफेक्ट, इसको हम करते हैं डिनोट प्लस आर से, एंड दूसरा है माइनस रेजोनेंस इफेक्ट, इसको हम करते हैं डिनोट माइनस आर से। सो व्हाट इज दिस प्लस आर रेजोनेंस इफेक्ट? इन दिस प्लस आर, यानी प्लस आर रेजोनेंस इफेक्ट का मतलब क्या है? इसका ये मतलब है when the transfer of electrons is away from an atom or subatomic group attached to the conjugated system, यानी when electron transfer takes place away from the atom or subatomic group attached to the conjugated system, उसको हम बोल सकते हैं कि ये प्लस रेजोनेंस इफेक्ट है। इस इफेक्ट से क्या होता है? जब डिस्प्लेसमेंट इलेक्ट्रॉन होता है, इट मेक्स सर्टेन पोजीशंस इन द मॉलिक्यूल ऑफ हाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटीज। यानी इससे क्या होता है, इस इलेक्ट्रॉन डिस्प्लेसमेंट में क्या होता है, इलेक्ट्रॉन डिस्प्लेसमेंट से कुछ पोजीशंस मॉलिक्यूल में बनती है, उनकी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा बनती है। फॉर एग्जांपल लेट अस टेक द एग्जांपल, विल टेक हियर एग्जांपल ऑफ एनालीन। हम करेंगे यहाँ पर एग्जांपल, दिस इज एनालीन, दैट इज एमाइनो बेंजीन। अब यहाँ पर ये सबस्टिट्यूएंट ग्रुप है अटैच्ड टू दिस कॉन्जुगेटेड सिस्टम। ये कॉन्जुगेटेड सिस्टम है, दिस इज कॉन्जुगेटेड सिस्टम विद ऑल्टरनेट सिंगल एंड डबल बॉन्ड्स। सो यहाँ पर आएगा ट्रांसफर होगा इलेक्ट्रॉन, यहाँ पर ये लोन पेयर इंटरेक्ट करेगा विद पाई इलेक्ट्रॉन्स ऑफ दिस कॉन्जुगेटेड सिस्टम। सो ये यहाँ जाएगा, सो ये इलेक्ट्रॉन पाई इलेक्ट्रॉन पेयर यहाँ जाएगा। सो विल गेट ए रेजोनेंस स्ट्रक्चर लाइक दिस, यहाँ पर डबल बॉन्ड एंड यहाँ पर आएगा पॉजिटिव चार्ज, यहाँ पर आएगा नेगेटिव चार्ज इस कार्बन पे, ये ऐसे रहेगी। एक और बन सकता है रेजोनेंस स्ट्रक्चर लाइक दिस, ऐसे रहेगा। यहाँ पर NH2, यहाँ पर ये आएगा, यहाँ ये जाएगा यहाँ। सो विल गेट दिस, यहाँ पर डबल बॉन्ड, यहाँ पर ये पाई इलेक्ट्रॉन पेयर, ये लोन पेयर यहाँ पर शिफ्ट होगी, ये लोन पेयर
सो ये यहाँ होगी शिफ्ट, यहाँ पर बनेगा नेगेटिव चार्ज ऐसे। सो यहाँ पर आप अगर देखोगे यहाँ पर जो इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होती है दैट इज अवे फ्रॉम द सबस्टिट्यूएंट अटैच टू द कॉन्जुगेट सिस्टम, उससे दूर हो जाती है वो एक्चुअली कॉन्जुगेट सिस्टम की तरफ जाती है। सो यहाँ पर जो इफेक्ट हो जाता है, अब देखो यहाँ पर कुछ पोजिशंस पे यहाँ पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा हो जाती है। सो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा होगी, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा होगी, यानी कुछ पोजिशंस पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा होती है इस इफेक्ट से। सो दिस इज कॉल्ड प्लस आर इफेक्ट, यहाँ पर ये प्लस रेजोनेंस इफेक्ट है। इसी तरह माइनस आर इफेक्ट का क्या मतलब है? माइनस आर इफेक्ट का मतलब है व्हेन ट्रांसफर इलेक्ट्रॉन्स टेक्स प्लेस टुवर्ड्स द एटम और सबस्टिट्यूएंट अटैच्ड टू द कॉन्जुगेटेड सिस्टम। यानी माइनस आर का मतलब है जब इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होगी, यानी ट्रांसफर इलेक्ट्रॉन्स टेक्स प्लेस टुवर्ड्स एटम और सबस्टिट्यूएंट group attached to the conjugate system. For example, we'll take here nitrobenzene can be example. Nitrobenzene, I'll write here, this is नाइट्रोबेंजीन, ये नाइट्रोबेंजीन है। अब अगर हम यहाँ देखेंगे ये जो यहाँ पर ये पाइलेक्ट्रॉन है, पाइलेक्ट्रॉन पेयर, ये यहाँ जाएगा, ये यहाँ जाएगा, दैट मीन्स ट्रांसफर होती है टुवर्ड्स द सबस्टिट्यूएंट अटैच्ड टू द कॉन्जुगेट सिस्टम या अवे फ्रॉम द वो। सो दैट एक्चुअली यहाँ पर जो ट्रांसफर इलेक्ट्रॉन्स होती है दैट इज फ्रॉम द कॉन्जुगेट सिस्टम टुवर्ड्स द सबस्टिट्यूएंट, यानी यहाँ पर वहां पर होती थी ट्रांसफर होती थी, वहां पर प्लस आर में होती थी ट्रांसफर अवे फ्रॉम द एटम और सबस्टिट्यूएंट ग्रुप अटैच्ड टू द कॉन्जुगेट सिस्टम। यहाँ पर होती है ट्रांसफर इलेक्ट्रॉन्स टुवर्ड्स द एटम और सबस्टिट्यूएंट ग्रुप अटैच्ड टू द कॉन्जुगेट सिस्टम। सो यहाँ पर एक और स्ट्रक्चर बनेगी लाइक दिस, यहाँ पर भी डेवलप होगा कुछ पोजीशन पे, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी डेवलप होगी ज्यादा। सो यहाँ पर बनेगा ऐसे डबल बॉन्ड एन, यहाँ पर नेगेटिव चार्ज डेवलप होगी, यहाँ पर ये पाई बॉन्ड यहाँ पर शिफ्ट हो गई। सो एक और स्ट्रक्चर बनेगा यहाँ पर डेवलप होगी पॉजिटिव चार्ज यहाँ, फिर आएगा यहाँ ये। सो विल गेट वन मोर स्ट्रक्चर लाइक दिस, विल गेट लाइक दिस एंड यहाँ पर एक स्ट्रक्चर थी, अब यहाँ पर आएगा बॉन्ड क्योंकि ये पाइलेक्ट्रॉन पेयर यहाँ पर शिफ्ट होगी। सो यहाँ पर डेवलप होगा पॉजिटिव चार्ज। इस तरह कुछ पोजीशंस पे यहाँ पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा हो जाएगी और कुछ पोजीशंस पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम होगी। सो दिस वाज माइनस आर इफेक्ट, ये माइनस आर इफेक्ट। अब जो एटम्स और ग्रुप्स जो हैं विच रिप्रेजेंट प्लस आर, अब हम लिखिए ग्रुप्स जो प्लस आर रिप्रेजेंट करते हैं, इन्हें जिनसे प्लस आर होगा, इन्हें प्लस रेजोनेंस इफेक्ट होगा, यानी जो रिप्रेजेंट करते हैं प्लस आर इलेक्ट्रॉन डिस्प्लेसमेंट, वो होंगे ग्रुप्स। द ग्रुप्स आर OH ग्रुप, OR ग्रुप, ये R यहाँ पर अल्काइल ग्रुप है, ये एलॉक्सी ग्रुप है, ये इसी तरह OC, ये OCOR, ये एस्टर ग्रुप है, इसी तरह NH2 ग्रुप है, एटसेट्रा। सो ये करेंगे, ये ग्रुप्स अगर अटैच होंगे ना कॉन्जुगेट सिस्टम को, ये करेंगे प्लस आर इफेक्ट वहां पर। अब जो माइनस आर जो ग्रुप से माइनस आर जो करते हैं, माइनस रेजोनेंस इफेक्ट जो करते हैं दैट इज COOH ग्रुप, इसी तरह CHO ग्रुप, ये हो गया कार्बोक्सिल ग्रुप, ये हो गया एल्डिहाइड ग्रुप। सो दिस इज कीटोनिक ग्रुप, ये कीटोनिक ग्रुप है, इसी तरह ये साइनाइड है, ये साइनाइड ग्रुप है। सो अगर ये अटैच होंगे कॉन्जुगेट सिस्टम को, वहां पर होगा माइनस आर इफेक्ट। अब ये कॉन्जुगेट सिस्टम जो हम बात करते हैं, व्हाट इज दिस कॉन्जुगेट सिस्टम मींस? कॉन्जुगेट सिस्टम का मतलब है द प्रेजेंस ऑफ नेगेटिव एंड द प्रेजेंस ऑफ सिंगल एंड डबल बॉन्ड्स in an open chain or cyclic system, in the presence of single and double bonds in an open chain or cyclic system is termed as conjugate, उसको बोलते हैं conjugate system।
ये ऐसे सिस्टम को होती है, दे शो एबनॉर्मल प्रॉपर्टी साइज सिस्टम्स। फॉर एग्जांपल ऐसे हम देखते हैं, दिखाते हैं यहाँ पर एक एग्जांपल यहाँ पर लिखेंगे। ये ओपन चेन सिस्टम है CH2 डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH2, ये 1,3 ब्यूटा डाइईन है, ये कॉन्जुगेट सिस्टम है, ओपन चेन कॉन्जुगेट सिस्टम है। इस तरह अगर हम लेंगे, अभी हमने लिया ये दिस इज एनिलीन, ये साइक्लिक कॉन्जुगेट सिस्टम है, साइक्लिक कॉन्जुगेट सिस्टम। इन साइज सिस्टम्स, इन सिस्टम्स में जो पाई इलेक्ट्रॉन्स हैं व्हेन दे गेट डिलोकलाइज्ड, जो पाई इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पर डिलोकलाइज होते हैं, जब भी पाई इलेक्ट्रॉन्स डिलोकलाइज होते हैं एंड द सिस्टम डेवलप्स पोलैरिटी, सिस्टम यहाँ पर पोलैरिटी डेवलप करता है। फॉर एग्जांपल अगर हम यहाँ पर देंगे, ये आएगा, ये आएगा यहाँ, ये जाएगा यहाँ, आप देखो यहाँ पर पाई इलेक्ट्रॉन डिलोकलाइज हो गए। सो ये CH2 सिंगल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH2, इस वाले कार्बन में पॉजिटिव चार्ज, इस वाले कार्बन में नेगेटिव चार्ज। सो आप देखो मॉलिक्यूल में यहाँ पर ऑलरेडी मॉलिक्यूल में यहाँ पर पोलैरिटी डेवलप हो गई बाय द डिलोकलाइजेशन ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन्स। सो दिस वाज अबाउट रेजोनेंस और मेसोमेरिक इफेक्ट। इसको हम +R से या +M से, -R से या -M से रिप्रेजेंट करते हैं। So what is actually now in simple terms, what is actually resonance effect? Resonance effect is actually, it is defined as the polarity produced, in the molecule, in the organic molecule, by the interaction of two pi bonds or between pi bond and a lone pair of electrons present on an adjacent atom.